السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بہار اسمبلی انتخابات کے ووٹنگ کا پہلے مرحلے کا آج آغاز ہو چکا ہے۔ صبح 7 بجے سے ووٹنگ کا آغاز ہوا اور 16 اضلاع کی 71 اسمبلی نشستوں پر رائے دہندگان کی ایک لمبی لائن دکھائی دی۔ پہلے مرحلے کے لیے کل 1066 امیدوار میدان میں ہیں اور 2 کروڑ 14 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے چہارشنبے کی صبح بہار اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹر سے خصوصی اپیل کی ہے۔ پی ایم مودی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ آج بہار اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ کا پہلا دور ہے۔ میں تمام ووٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کووڈ سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جمہوریت کے اس تہوار میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ دوسری طرف کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بھی ووٹر سے خصوصی اپیل کی ہے۔ راہل گاندھی نے لکھا کہ اس بار آپ کا ووٹ انصاف، ملازمت، کسان، مزدوروں کے لیے ہونا چاہیے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ چہارشنبے کو 71 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، لیکن ووٹنگ کے ابتدائی اوقات میں ای وی ایم میں خرابی کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ بڑھیا کے پولنگ بوتھ نمبر 33 پر پہنچے، لیکن یہاں ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی ای وی ایم میں خرابی آ گئی، تاہم بعد میں اس کو ریپیئر کیا گیا۔ ووٹنگ سے قبل مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے کہا کہ عظیم اتحاد کے قائدین ترقی پر تبادلہ خیال کرنے سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ ترقی پر تبادلہ خیال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اپنے والدین کو اپنے پوسٹر سے ہٹا دیا تاکہ 15 سالہ پرانی تصویر سامنے نہ آئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تیسری 2 اسٹریٹجک بات چیت کے بعد کہا ہے کہ امریکہ آزادی و خود مختاری کے تحفظ کی کوششوں میں ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس بات چیت میں مشرقی لداخ، ہند بحرکال اور دنیا کے دوسرے حصوں میں چین کے جارحانہ فوجی رویے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ پومپیو نے چین پر سخت تنقید کرتے ہوئے مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں ہندوستانی سپاہیوں کی ہلاکت کا حوالہ دیا اور کہا کہ ہندوستان اور چین دونوں نہ صرف چائنیز کمیونسٹ پارٹی بلکہ تمام خطرات کے خلاف تعاون کو مضبوط کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس بات چیت کے دوران دونوں ملکوں نے جملہ 5 معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں بنیادی تبادلے اور تعاون کا سمجھوتا بھی شامل ہے، جس پر طویل عرصے سے بات چیت کی جا رہی تھی۔ مودی کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے اندھا دھند مہم چلانے والے فیس بک کی ہندوستانی عہدیدار نکی داس نے آخرکار تنازع پیدا ہونے کے بعد عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے یہ اطلاع دی ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے انکی داس کے خلاف کچھ فیس بک کے ملازمین کی جانب سے زبردست اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ ملک بھر میں ان پر تنقیدیں کی جا رہی تھی اور ملازمین بھی انتہائی برہم ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے ہر انتخابات میں مہم چلائی تھی۔ انکی داس ہندوستان میں فیس بک سے وابستہ ہونے والے اولین ملازمین میں شامل تھی اور انہوں نے اس ملک میں کمپنی کو فروغ دینے کے لیے اہم رول ادا کیا تھا۔ 9 سال تک وہ کمپنی سے وابستہ رہی ہے۔ گزشتہ 2 سال سے وہ لیڈرشپ ٹیم میں شامل تھی۔ ایک اہم پیش رفت میں مرکز نے جموں کشمیر کے لیے نئے اراضی قوانین کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ گزشتہ روز مرکزی وزارت داخلہ نے گزٹ اعلامیہ جاری کر دیا، جس سے ہر ہندوستانی کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے کہ وہ مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر میں اراضی خرید سکتا ہے۔ مرکزی حکومت کا یہ حکم نامہ فی الفور لاگو ہو گیا۔ یو این آئی کے بموجب نیشنل کانفرنس کے نائب صدر و سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے مرکزی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کے اراضی مالکانہ حقوق قوانین میں ترمیم کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے اراضی کو فروخت کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں کے پاس تھوڑی بہت اراضی ہے وہ زیادہ متاثر ہونے والے ہیں۔ ٹاٹا زیورات کی سب سے بڑی کمپنی تنشک کے ٹی وی کمرشل اشتہار پر تنازع کے بعد دہلی ہائی کورٹ میں ایک درخواست پیش کی گئی ہے، جس میں ٹی وی چینلوں پر فرقہ وارانہ نفرت انگیز بیانات کی نشریات پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ملک کے معروف ایڈوکیٹ اصغر خان نے اپنی درخواست میں دہلی ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا کہ میڈیا میں فرقہ وارانہ مواد کی نشریات روکنے کے لیے نفرت انگیز بیانات کے کئی واقعات کا حوالہ دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ تنشک اشتہار میں مختلف مذہبی گروپوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کے جذبات کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ اس کے خلاف میڈیا میں نفرت انگیز مہم چلائی گئی۔ دوسری طرف بدنام زمانہ ٹی وی چینل سدرشن ٹی وی UPSC جہاد کے نام پر ایک مذہبی گروپ کے خلاف نفرت بھڑکائی گئی۔ ٹی وی چینلوں پر اشتعال انگیز روکنے کے لیے کوئی مؤثر ضابطہ قانون موجود نہیں ہے۔ مرکزی حکومت نے ان لاک 5 کے لیے جو رہنمانہ ہدایات جاری کیے تھے وہ نومبر کے اواخر تک برقرار رہیں گے، جبکہ 31 اکتوبر کو ان ہدایات کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ ان لاک 5 کے تحت سنیما ہال، تھیٹر اور ملٹی پلیکس کھول دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ کنٹینمنٹ زونز کے باہر بعض شرائط کے تحت دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی اجازت دی گئی تھی۔ وزارت داخلہ نے آج نئے احکامات جاری کرتے ہوئے رہنمانہ ہدایت کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کی ہے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے بہار اسمبلی انتخابات میں تبدیلی کو ضروری بتاتے ہوئے ریاست میں تبدیلی لانے کے لیے عوام سے عظیم اتحاد کو اقتدار سونپنے کی اپیل کی ہے۔ محترمہ گاندھی نے بہار کے عوام کے نام ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بہار حکومت اپنے مقصد سے بھٹک گئی ہے، جس سے مزدور، کسان اور نوجوان مایوس ہیں۔
मईशत नाजुक होने की वजह से रियासत के दलित और महादलित बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। कोविड-19 से तबाह हुई माशी बहरान और मालिया की कमी का बढ़ता दबाव मरकजी हुकूमत को परेशान कर रहा है। मरकज ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में दोबारा इजाफा कर दिया है। जराये ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर मजीद 3 तक 6 रुपये फी लीटर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा होगा। हुकूमत का एहसास है कि कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए इकदाम के बाद मईशत पर मजीद बोझ पड़ रहा है। इसकी पाबंदी के लिए पेट्रोल डीजल पर आयद किए जाने वाले इजाफी टैक्स को इस्तेमाल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल से वसूल किए जाने वाले टैक्स हुकूमत का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 राहत इकदाम पर खर्च करेगी। हुकूमत को साल भर के लिए 60,000 करोड़ रुपए वसूल होंगे। फ्रांस में गुस्ताखाना कार्टून्स की इशाअत और सदर इमानुएल मैक्रोन के मुखालिफ इस्लाम बयानात पर मुस्लिम दुनिया में बरहमी की लहर दौड़ गई है और कई ममालिक में मुजाहरे हो रहे हैं। सिफारती सतह पर भी फ्रांस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में फ्रांस के नाज़िमुल उमूर को तलब करते हुए शदीद एहतजाज दर्ज किया गया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों कौमी असम्बली और सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में तकरीबन 10,000 अफराद ने एक मार्च निकालते हुए फ्रांस में गुस्ताखाना कार्टून्स की इशाअत की मजम्मत की। मुंतज़मीन के एक लीडर ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा कि वो फ्रांसीसी अशिया का बाइकाट करें। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश नामी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले एहतजाजी बैनर्स और प्लेकार्ड्स थामे हुए थे जिन पर लिखा था कि दुनिया के तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और फ्रांस का बाइकाट करें। यह तंजीम मुस्लिम अक्सरियती बांग्लादेश में इस्लामी कानून के निफाज की वकालत करती है। एहतजाजी फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की एक तस्वीर थामे हुए थे जिस पर जूतों का हार चढ़ा था। एहतजाजी बांग्लादेश की सबसे बड़ी बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने जमा हुए और फ्रांसीसी सिफारत खाने की तरफ जुलूस निकालने की कोशिश की जो मस्जिद से चंद किलोमीटर दूर है, लेकिन पुलिस ने जुलूस को रास्ते में रोक लिया और वो पुरअमन तौर पर खत्म हुआ। दूसरे मुल्कों बशमुल पाकिस्तान और फलस्तीन के इलाकों में भी जबरदस्त मुजाहरे किए गए हैं। सऊदी अरब का कहना है कि वो अमन के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी दूसरे रसूल के मुतालिक गुस्ताखाना खाकों की भरपूर मजम्मत करता है। इसके साथ मुमलिकत इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की हर कोशिश मुस्तरद करती है। ये बात मंगल के रोज सऊदी वज़ारत खारजा के एक ओहदेदार ने बताई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अंदेशा जाहिर किया है कि हिंदुस्तान इस्लामाबाद को निशाना बनाने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को अंदेशा है कि हिंदुस्तान इसे अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा। इमरान खान ने कहा कि हमने हिंदुस्तान का दोस्त बनने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फ्रांस में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुस्ताखाना कार्टून्स की इशाअत को हुकूमत की सरपरस्ती के खिलाफ मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर पाई जा रही है। यूं तो दुनिया भर में फ्रांस के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है और फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट की मुहिम उरूज पर है। तेलंगाना में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तंजीमों और अफराद की जानिब से फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट की मुहिम शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बड़े शहरों बशमुल हैदराबाद में वाक़ मॉल्स और तिजारती मराकिज़ में अवाम फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले अशिया की खरीदी से गुरेज कर रहे हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में वाक़ बड़े तिजारती मराकिज़ से रुजू होकर अवाम ने फ़रोख्त के सामान से फ्रांस की अशिया को अलहदा करने की नुमाइंदगी की है। इत्तलात के मुताबिक शहर के कई स्टोर से फ्रांसीसी अशिया को हटा लिया गया ताकि मुसलमानों की दिल आज़ारी ना हो। सोशल मीडिया पर उलमा इकराम और मुख्तलिफ जहदकारों ने फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट की अपील की है ताकि मुल्क भर में इस मुहिम के जरिए फ्रांसीसी हुकूमत तक ये पैगाम भेजा जाए कि गुस्ताखाना कार्टून्स की इशाअत पर अवाम खामोश नहीं रहेंगे। इज़हार ख्याल की आज़ादी के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों की दिल आज़ारी गुस्ताखाना कार्टून्स का बुनियादी मकसद है। ऐसे वक्त जबकि सारी दुनिया में मुसलमान जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियों में हैं, ऐसे वक्त फ्रांस में गुस्ताखाना कार्टून्स की इशाअत अमल में लाई गई। सियासत एजुकेशन फेयर का 1 नवंबर को आगाज होगा जो 3 नवंबर तक जारी रहेगा। इस तालीमी नुमाइश का महबूब हुसैन जिगर हॉल अहाता सियासत में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एक छत तले मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज के इदारे और इनके नुमाइंदों, तलबा और सरपरस्तों के दाखिले रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे। इंजीनियरिंग, BE, BTech, मैनेजमेंट स्टडीज़ में MBA और बिजनेस स्कूल, फार्मेसी, मेडिसिन के साथ B.Ed में दाखिले की मालूमात हासिल कर सकते हैं। नामूर कैरियर काउंसलिंग के माहिर MA हमीद महबूब हुसैन जिगर हॉल में सुबह 11 बजे तक शाम 5 बजे मौजूद रहेंगे। राजेंद्र नगर के इलाके किस्मतपुर में अगवा का एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया जिसमें नामालूम अफराद ने एक डॉक्टर का अगवा कर लिया।
तफसीलात के मुताबिक 57 साला डॉक्टर हुसैन को बाज नकाब पोश अगवा कुनिंदों ने मंगल की शाम इनके अपार्टमेंट से अगवा करते हुए इनोवा गाड़ी नंबर AP9Y0031 में नामालूम मुकाम मुंतकिल किया। इस वाक़े के बाद मगविया डॉक्टर के अफराद खानदान और इलाके में डर और खौफ की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलने पर पुलिस कमिश्नर साइबराबाद VC सजनार और डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद M प्रकाश रेड्डी वहां पहुंचे और मगविया डॉक्टर के अफराद खानदान से अगवा के बारे में तफसीलात हासिल की। वाज़ है कि मगविया डॉक्टर मशहूर डॉक्टर शमशाद हुसैन के फर्जंद थे। इसी दौरान साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीमें और दीगर शोबों से वाबस्ता पुलिस को अगवा कुनिंदों का पता चलाने की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। इसी तरह पुलिस ने राजेंद्र नगर और इसके अतराफ के इलाकों बशमूल आउटर रिंग रोड और कौमी शाहराहों के तमाम CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली है और अगवा कुनिंदों की कार का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जिला विकाराबाद के जंगलाती इलाके में हुई फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के फार्म हाउस के इंचार्ज उमर को पुलिस ने मंगल को इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। उमर पर 4 दिन कबल एक फार्म हाउस में चरने आए गाय को गोली मारकर हलाक करने का इल्जाम है। पुलिस मुकामी अफराद की शिकायत पर तहकीकात कर रही है। पुराने शहर में बास गुंजान आबादियों में स्कूलों की कुशादगी का महकमा तालीम की जानिब से सख्त नोट लिया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों ने महकमा तालीम और हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए स्कूलों की कुशादगी का फैसला किया है, इन स्कूलों की मुस्लिमा हैसियत खत्म कर दी जाएगी। रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद स्कूलों की कुशादगी के सिलसिले में ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन गुंजान आबादियों में चलाए जा रहे बाद स्कूलों में स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा को स्कूल तलब किया जाने लगा है और इनकी बाज़ाब्ता क्लासेस चलाई जा रही है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। महकमा तालीम के अहदेदारों ने बताया कि इस सिलसिले में इन्हें जो शिकायत मौसूल हुई है, इनका जायजा लेने के बाद इस बात का फैसला किया गया है कि अगर कोई स्कूल तलबा को स्कूल में तलब करते हुए क्लासेस मुनक्किद कर रहा है तो इसकी मुस्लिमा हैसियत बर्खास्त कर दी जाएगी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार IAS ने महकमा माल के अहदेदारों को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ख्वाहिश के मुताबिक धरानी पोर्टल के जरिए शहरियों को परेशानियों से पाक रजिस्ट्रेशन और दूसरी मुतालिका खिदमात फराहम करने की हिदायत की है। महकमा माल के अहदेदारों और अमले के एक तरबियती प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर 29 अक्टूबर को धरानी पोर्टल का आगाज करेंगे। उन्होंने महकमा माल के अमले से अपील की कि वो चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिशात पर पूरा उतरते हुए धरानी पोर्टल पर कामयाबी के साथ अमलावरी को यकीनी बनाए, जिसके जरिए सादा और शफाफ और तेज रफ्तार खिदमात की दस्तयाबी मुमकिन हो सके। GHMC इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोविड-19 में एहतियाती तदाबीर के मुतालिक रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं। रहनुमा खतूत की इजराई से पता चलता है कि आइंदा 2 या 3 माह के दौरान GHMC इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। इंतखाबात के दौरान तशहीरी सरगर्मियों पर चंद पाबंदियां लगाई जाएगी। इसके अलावा राय दहिंदगान और ओहदेदारों को मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर वोटर की शिनाख्त मालूम करने की जरूरत पड़ती है तो मास्क को हटाया जाएगा। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले ही ओहदेदारों और पोलिंग अमले को कोविड-19 के रहनुमा उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करने की हिदायत दी जा चुकी है। इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवार को अपने साथ सिर्फ 5 अफराद को साथ लेकर घर घर मुहिम चलाने की इजाज़त रहेगी। रोड शोज के लिए भी सिर्फ 5 गाड़ियों को साथ रखने या दिया जाएगा। जलसे आम के इनेकाद के दौरान कोविड-19 के मुतालिक तमाम एहतियाती इक़दामात पर सख्ती के साथ अमल करना होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोस्टल बैलेट के जरिए रायदही में हिस्सा लेने के मुतालिक ज़ुमरों में मजीद इजाफा किया गया है।